इतने साल से जो मैं गाना गा रही हूँ 54 years नाउ, और जब रिकग्निशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप किसी कार्य में बहुत लंबे समय तक तल्लीन हो जाते हैं और उसके बाद आपको कुछ परिणाम भी मिलने लग जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उसका रिकॉग्निशन हो। पहले तो रिएक्शन ये हुआ जो मेरा काम का कम से कम मेरे को स्वीकृति मिला, रिकॉग्निशन मिला, इसीलिए खुश तो हूँ, बहुत खुश हूँ। इतना साल बाद जो रिकॉग्निशन मेरे को दिया गया, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबको मैं मेरा धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो मेरा ज़िंदगी हाथी को जो संभालते हैं उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है, तो इसलिए मेरा काम मैं करती गई, तो ईश्वर ने इतना तो मेरे को माने आशीर्वाद दिया जो मेरा रिकॉग्निशन मिल गया, और मैं ज़िंदगी भर उसी में काम करूँगी। आई डेडिकेटेड माई लाइफ, मेरा पूरा लाइफ हाथी, अन्य वन्य जीव जंतुओं और उन लोगों का साथ जो रहता है, इसके लिए मैं डेडिकेटेड हूँ। It was a fantastic feeling, क्या कहूँ मैं। अब तक मुझे महसूस हो रहा है कि ये सच बात है या नहीं। You know, it's so beautiful. I'm so grateful to God, I'm grateful to the government and grateful to our country really, क्योंकि इतने साल से जो मैं गाना गा रही हूँ 54 years now, और जब रिकग्निशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। I want to say thank you to everybody, my family, my friends, जिनके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होता। म्यूजिशियंस जो हमारे साथ इतने दिन, इतने साल बजाते आ रहे हैं, all the technicians, सबको, आपको, the media, everybody. This belongs to all of you actually, but it's my Padma Bhushan and I'm so happy about it, so happy. कि पहली बात तो शुक्रगुजार हूँ मैं सब बड़े लोगों का, अपने वेल विशर्स का, दोस्तों का, और सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का अपने। और बहुत खुशी का पल है, क्योंकि जब आप किसी कार्य में बहुत लंबे समय तक तल्लीन हो जाते हैं और उसके बाद आपको कुछ परिणाम भी मिलने लग जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उसका रिकॉग्निशन हो, ताकि आपको ऊर्जा मिल सके उस कार्य को दुगनी प्रगति से, दुगनी गति से आगे बढ़ा सकें। तो बहुत ही खुशी का समय है, और सबसे खुशी की बात है कि आज का दिन जो हमारा रिपब्लिक डे है, और इस दिन ये सम्मान का अनाउंस किया जाना और इस सम्मान में मेरा नाम शामिल होना, तो मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। बहुत प्रसन्नता है मुझे इसकी। I had never aspired to get any award and never imagined, but it has come with a big surprise, and it has made me very happy, overwhelmed. It has indirectly, directly encouraged me to do the social and educational work that I am doing, basically for have-nots and the most marginalized section of the society. The children who can't afford 2 square meals are not able to come to school. So we are taking care of out-of-school dropouts and regular students. We do a lot of cross-subsidy. And my organization is truly a charitable organization, private, non-commercial. And 60% of our students at school level are first-generation learners. So giving them education gives a lot of satisfaction. And I must tell you, I have seen the privileged children and the underprivileged. The underprivileged children are waiting for an opportunity. They have fire in their belly. And most of the achievers in my organization, I have 100,000 plus 10,000 students, 97 institutions. I find the most poorest of poor children do very well, exceptionally. So the message down the line is we must need to reach out to the last person, which we are doing. And this award has also encouraged my organization per se. I think this is just not an individual award, but it is an award for organization, which encourage a lot of our people to do more and more work.
you feel very nice when some recognition is done, and that recognition lights up you, and you feel more desire to, with more passion to do work. We are managing about 2 orphanages, and all the girls' orphanages. We educate them, we take good care of them, we rehabilitate them, they get good jobs, and then we get them married also. We also have a Sahara unit which caters to some destitute women. So all in all, my organization looks after the basic to the PhD level education, and also social work in terms of looking after the orphanages, in terms of looking after the poorest of the poor. And I think more and more people will take up this initiative, like I have done it and my colleagues have done it. They will feel encouraged that yes, there is a recognition, and recognition from none other than Government of India, the Prime Minister of India. It's incredible. I'm grateful to them that they have recognized the work being done by me and my organization. मेरे को साहब सन 85 में स्टेट अवार्ड से मिला, सन 92 में नेशनल अवार्ड मिला, और मेरे को शिल्प गुरु सन 14 में दिया, और अब मेरे को अनाउंस किया है पद्मश्री देने का। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। मुझे कल ही ये खबर मिली है। किस चीज़ के लिए दिया गया आपको? मेरे को वॉल प्लेट बनाई है मैंने, मरोड़ी वर्क बहुत बारीक है, जो सनलाइट में ही केवल वो बनती है, बंद कमरे में नहीं बनती, ना उसमें हाथ चलेगा, वो सनलाइट में ही बनेगा। वो इतना बारीक बना हुआ है कि वो देखने योग्य है, और देखने योग्य है। बहुत संभाल कर उसको बनाया गया है, जिससे कि आंखों में भी कभी कभी दर्द पैदा हो जाता है उसे बनाने से, और सर में भी दर्द पैदा हो जाता है। वो इतना बारीक बना हुआ है कि वो देखने योग्य है, और वो 4 साल में लगभग बनकर तैयार हुआ सर। आप शिल्प गुरु से पहले सम्मानित जी। क्या आप किसी इस प्रकार की नर्सरी भी चलाते हैं, लोगों को सिखाते हैं? हाँ, मुझे भारत सरकार से जो स्कीमें मिलती हैं, मैंने बहुत सारे लड़कों को काम सिखाया है, लड़कियों को भी काम सिखाया है। काफ़ी लड़के काम सीखकर अपना अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो व्यापार की दृष्टि से कैसा है? व्यापार की दृष्टि से अच्छा है। इस वक्त थोड़ा सा ये जो झगड़ा चल रहा है, इसकी मद्दी आई हुई है बाज़ार के अंदर, जिससे कि काम खरीदने वाला बाज़ार से ऑर्डर नहीं ले पा रहा है, और उधर से जो मतलब लोग आते हैं मतलब ऑर्डर देने के लिए विदेश से, वो लोग इधर नहीं आ रहे हैं। इसका प्रयास भारत सरकार कर रही है कि ये युद्ध खत्म हो, और युद्ध खत्म होते ही ये काम आगे बढ़ जाएगा। बहुत खुशी की बात है, और ये बहुत अभिमान की बात है अपने नागपुर शहर के लिए, विदर्भ के लिए और पूरे देश के लिए कि ये पुरस्कार दिया गया है, और सब डॉक्टर फ्रैटर्निटी के लिए ये बहुत अभिमान की बात है। सर, मेडिसिन के क्षेत्र में आपको दिया गया? हाँ, तो मेरा क्षेत्र है न्यूरोलॉजी, और उसमें 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जिसके लिए दिया है, तो एकेडमिक लीडरशिप। मैं अभी दुनिया में जो सबसे बड़ी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है न्यूरोलॉजी की, जिसको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी बोलते हैं, तो उसका मैं ट्रस्टी हूँ। तो दुनिया में उसके 3 ही ट्रस्टी रहते हैं, और पिछले 65 साल में पहली बार भारत का कोई ट्रस्टी इस पद के लिए तक पहुँचा है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी। और दूसरा कि ट्रॉपिकल न्यूरोलॉजी है वर्ल्ड फेडरेशन का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो ये भी पहले बार ऐसा हुआ है। और दूसरा कि हमारा काफ़ी 30 साल से जो हम दिमाग की जो बीमारियां हैं, जैसे पार्किंसन डिसीज़ हो गया, डिमेंशिया हो गया, स्ट्रोक हो गया, मिर्गी हो गई, सर दर्द हो गया, और जितनी भी मेंदू ज्वर हो गया, दिमाग की बीमारी है, उसके बारे में पिछले 30 साल से जन जागरण करते हैं। तो उसमें टीवी पे, ऑल इंडिया रेडियो पे, न्यूज़पेपर से, और लोगों की मीटिंग, स्कूल में, कॉलेजेस में ये प्रोग्राम्स करते हैं और लोगों को जन जागरण करते हैं, क्योंकि ये बीमारियां कैसी पहचानना और बीमारी का इलाज यदि जल्दी करते हैं और उसको प्रिवेंट कैसे करना, उसके बारे में जन जागरण करते हैं। सर, इतना बड़ा अवार्ड मिला है, जिम्मेदारी भी बढ़ती है। आने वाले समय में आपका
क्या संकल्प होगा, किस तरीके से ये काम आगे बढ़ाया जाए? हाँ, तो ये जो काम है ये हम चालू रखेंगे और उसको ज़्यादा बड़े पैमाने पे करेंगे। जैसे पिछले साल हमने पूरे देश में ये प्रोग्राम्स किए थे जन जागरण के 7 दिन तक और करीब 100 एक्टिविटी किए थे 7 दिन में। और उसकी जो दखल है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने ली थी और उन्होंने बोला कि दुनिया में सबसे बेस्ट कैंपेन जो है वो इंडिया से हुआ है। तो इसमें सब ये काम अकेले से नहीं हो सकता है, सब डॉक्टर लोगों का सहयोग है, समाज का सहयोग है, सोसाइटी का सहयोग है, पेशेंट्स का सहयोग है और हमारे जितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं नागपुर के, विदर्भ के और देश के, उनका सबका सहयोग है। तो ये उनके सहयोग के कारण ये सब काम होते रहा है और ये काम को हम आगे चलाते रहेंगे। मैं तो स्वाभाविक तौर पर प्रसन्न हूँ, लेकिन ये प्रसन्नता आई है कि जो काम मैंने जीवन में किया और वह काम करते समय राजनीतिक या सामाजिक, उसमें जो कार्यकर्ताओं का सहभाग मुझे मिला और कार्यकर्ताओं का सहभाग मिलते समय उसके साथ ही साथ जो सवाल मैंने उठाए जनहित के, इस सब का मिलकर जो चीज़ बनती है वह चीज़ और उसको मान्यता केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री ने दिया। इसलिए स्वाभाविक तौर पर मुझे प्रसन्नता है और काम का आनंद जो होता है वो मुझे आज मिल रहा है। बेटा ये नेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड तो है ही है और साथ ही साथ में ये हमारी पैथी को रिकॉग्नाइज करने का भी एक बहुत बड़ा सम्मान है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि काफ़ी दिनों की 70 साल की साधना के बाद में जो है इस पैथी को ऐसा सम्मान मिला है। जर्नी की बात कीजिए आपकी, तो किस तरीके से रहा संघर्ष? संघर्ष तो देखिए बहुत प्रारंभ से ही, जिस वक्त मैंने कलकत्ता से जो है पास किया, ये सन 50 की बात है, उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि होम्योपैथी का कोई सम्मान नहीं था, रिकॉग्निशन नहीं था और समाज में उसका मान भी नहीं था। और ऐसी परिस्थितियों में जो है मैंने ये पढ़ कर के आया और उसके बाद मैं सोचा कि मैं इस पैथी को ऊपर आगे ले जाऊँगा, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से, ताकि इसका सम्मान हो।